Hello student, welcome again our YouTube channel UPSC NCERT and static portion in the initiative of all NCERT session. Today is the sixth lesson of the Geography NCERT of class 6th. The lesson name is India our country. In this lesson we will discuss about the geographical and physical position of India. Also we will discuss about the administrative and political situation and political condition of India, and we will discuss the actual position of the India in the world. Okay, let's start today's session. Before we start session, we have some announcement related to our Telegram channel. If you still did not joined our Telegram channel, I will suggest you to join our Telegram channel. Link has provided in the description below. So it first of all, we are discussing about India. We have already discussed about India in previous session of geography. So if you continued in all sessions, you would know about where is India is actually situated, located in the world map. What is the world, what is the earth, what is the hemisphere, latitude, longitude, northern hemisphere, southern hemisphere. These are the actual dividation of fact, and you can say that there is the various terminology used to specify any position of the earth. Okay, next, India looks these types. This is the map of India. You know that India is looking this like. Okay, I want to share something important about India. Before I tell about India, I just want to draw some world map. Okay, this is the earth, northern hemisphere, southern hemisphere, eastern part and western part. Okay, there is northern hemisphere. India is located somewhere here. You can see in the map, India is located somewhere here. Okay, and some parts of world there is like Africa, Australia. So it is the India. So where is India located? India is located in the, you can see that you can divide in those. It is northern and eastern. So where is India is located in the northeastern part of world. Northeastern part of world. So we will use these things, that these are the latitude in the northern part, these are the latitude in the northern part, or these are the longitude in the eastern part. We will use these longitude and latitude in respective of India, only eastern and northern latitude and longitude respectively. Okay, next, start measuring our country. India is something located at the, you can see that there is a Tropic of Cancer. Here is the Tropic of Cancer. I am drawing Tropic of Cancer passing through some state of India like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh. These are the Jharkhand, Chhattisgarh, Pachim Bengal, okay, Tripura and Meghalaya नहीं, sorry, यहाँ पे मिजोरम है. Okay, these are the, it is called ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा हिंदी में बोलेंगे इसको.
ठीक है। इंडिया जब यहाँ पे लोकेटेड है तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ज़्यादातर लोकेटेड है। इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड में कहाँ पे लोकेटेड है? वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे तो ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ओके, आपको मैंने ये यहाँ पे आपको समझा दिया कि इंडिया इज लोकेटेड हियर। यू कैन सी दैट इंडिया इज लोकेटेड समवेयर हियर। इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन सी इन द वर्ल्ड मैप ऑल्सो। ओके, next move to India. When we measure the India's latitude and longitude, you can see here some island situated in the India's eastern part. Name of island is the Andaman and Nicobar. Andaman and Nicobar Island. We measure from here. It is the 8 degree 4 minute north. How can say that 8 degree north? देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री है। आप जब इस साइड में बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये है यहाँ इंडिया जो स्टार्ट होता है, इंडिया का जो फर्स्ट सदर्न मोस्ट पार्ट है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे स्टार्ट होता है। और एंड कहाँ पे होता है? एंड होता है जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख में कह सकते हो। यहाँ पे एंड होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। तो आपको जो इंडिया की एक्चुअल में पोजीशन सर नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और नॉर्थ के अंदर ही एंड हो रहा था। तो इसका मतलब जो इंडिया की पोजीशन नॉर्थ हेमिस्फीयर या फिर नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ये तो हो गया लेटीट्यूड वाला पार्ट। लेटीट्यूड वाला पार्ट कौन सा? ये वाला पार्ट। देखो यू कैन सी हियर दैट आपको एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। ये है लेटीट्यूड वाला पार्ट, ठीक है। लेटीट्यूड होते हैं जो पैरेलल होते हैं, इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, उसको लेटीट्यूड बोलेंगे। तो लेटीट्यूड वाला पार्ट हो गया इंडिया का जो 8 डिग्री से शुरू होता है और 37 डिग्री के आसपास खत्म होता है। अब चलते हैं लॉन्गिट्यूड वाला पार्ट। लॉन्गिट्यूड पता है आपको? लॉन्गिट्यूड इस साइड ऐसे कुछ होता है, ठीक है। जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, स्टार्ट होता है गुजरात स्टेट में, वो 68 डिग्री और 7 मिनट। ये है जो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड ईस्ट पार्ट के अंदर। आप ईस्ट क्यों लगाया वेस्टर्न पार्ट में? मैंने ईस्ट क्यों लगाया मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट है जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 95 है ना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पार्ट। अब सिर्फ दोनों जगह आपने नॉर्थ लगाया है, दोनों जगह ईस्ट लगाया है। इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। कैसे? देखो जो इंडिया है ये ईस्ट वाले पार्ट के अंदर है, ये नॉर्थ वाले पार्ट के अंदर। जब आप इस साइड से इस साइड बढ़ेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ से भी स्टार्ट होंगे और नॉर्थ के अंदर जाएंगे, ठीक है। इक्वेटर ये मिडल है, मिडल पे आप स्टार्ट नहीं हो रहे, आप 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहे हैं, 37 डिग्री तक जाएंगे, तो नॉर्थ के अंदर से स्टार्ट हुए नॉर्थ में जा रहे हो। वर्ल्ड के लेवल पे आप इंडिया की प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो। अब जब आप लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इस तरह लॉन्गिट्यूड होते हैं। अब लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो आप कहाँ से स्टार्ट हो रहे हो? आप ईस्ट के अंदर से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट किस में है? ईस्ट वाले पार्ट में। ये वाला ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट वेस्ट है, ये वाला ईस्ट है। तो आप इंडिया की पोजीशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो कहीं समवेयर हियर इज 68 डिग्री 7 या फिर कह सकते हैं हाँ 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये ईस्ट वाले पार्ट में है और यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। तो ये वाला पार्ट है 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट वाले पार्ट में। तो इसलिए ईस्ट और ईस्ट से ईस्ट तक, नॉर्थ से नॉर्थ तक क्यों इंडिया की जो लोकेशन है सेट की हुई है वो इसी रीज़न से है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि सर ईस्ट क्यों लगाते और नॉर्थ वेस्ट क्यों लगाते, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा मैंने हटा दिए ये सब, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए। ओके
अब नेक्स्ट मूव चलते हैं कि जो इंडिया की ये तो लोकेशन होगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर, ठीक है। लैटिट्यूड होते हैं जो पैरेलल होते हैं इक्वेटर के, ये वाला इक्वेटर पार्ट है, ये वाला पार्ट इक्वेटर है, इसके जब पैरेलल होंगे तो उसको लैटिट्यूड बोलेंगे, और इसके पैरेलल ना होके इसके परपेंडिकुलर होंगे तो ये बोलेंगे हम पैरेलल, समझते हो पैरेलल, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है पैरेलल, ठीक है। जब इक्वेटर के पैरेलल होगी तो उसको बोलेंगे हम लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर के परपेंडिकुलर होगी उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूड। ओके, मैंने आपको पहले से ये एक्सप्लेन कर रखा है कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हो। अब चलते हैं कि सर इंडिया की पोजीशन तो आप बता दी वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन एक्चुअल में इंडिया की लेंथ क्या है और ब्रीथ क्या है, तो हम देखेंगे कि जो इंडिया है वो कितना एक्सपांडेड है। आपको पता है कि इंडिया की जो यहाँ की जो बात करें तो ये वाला पार्ट इसको बोलेंगे हम जम्मू कश्मीर, J&K, और ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम कन्याकुमारी। ओके, तो जो इंडिया की जो बाउंड्री है या फिर कह सकते हैं इसकी जो लेंथ, इस प्रकार से हम कहेंगे तो ये वाला पार्ट है कितना पार्ट है, ये वाला देख लो यहाँ पे 3200 किलोमीटर, ये जो लंबाई कह सकते हैं आप इंडिया की 3200 किलोमीटर लंबी है इंडिया, ठीक है। अगर इसको हम इसकी जो चौड़ाई मापेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये 2900 किलोमीटर ये लंबी है। तो आपको लगता होगा कि सर आई थिंक इंडिया की जो लंबाई और चौड़ाई में कितना फ़र्क है, 300 किलोमीटर का ही फ़र्क है, लेकिन आपको दिखती लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और चौड़ाई काफ़ी कम दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2900 किलोमीटर की चौड़ाई है और 3200 किलोमीटर की इसकी इंडिया की लंबाई है। तो आपको ये क्लियर मामला हो गया होगा, पता है आपको यहाँ लोकेशन में J&K जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ कन्याकुमारी है, यहाँ पे गुजरात है, देख सकते हैं आप गुजरात यहाँ पे है, और यहाँ पे है आप अरुणाचल प्रदेश AP। ओके, और कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन तो वो हो जाती है मकर रेखा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की किन किन राज्यों से आप गुजरती ये भी आप लिख दीजिए। यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, दीज आर द स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। अब चलते हैं कि में इंडिया का पोजीशन है वो, और भी थोड़ा बहुत NCERT के अंदर डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। देखो लोकेशन सेटिंग आप देख सकते हैं, मेनलैंड जस्ट ए सेकेंड, पेन कलर चेंज कर दूँ। मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मैंने बोला था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट लेटीट्यूड, ये जो लेटीट्यूड वाला पार्ट है, ठीक है। एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया इज एक्सटेंडेड फ्रॉम बिटवीन 68 डिग्री, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लगा के 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये वाला पार्ट हो गया इंडिया का लॉन्गिट्यूड वाला ये वाला पार्ट, लेटीट्यूड वाला ये वाला पार्ट। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया की एक और, अगर आप ये तो होगी एक डायमेंशनल कह सकते हैं कि इंडिया की जो बात हो गई। अब ज्योग्राफिकली या फिर फिजिकली हम बात करें इंडिया की, तो आप इंडिया के रेफरेंस में आप पाएंगे कि जो इंडिया है यहाँ वाला, इस वाले पार्ट के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी यहाँ पे है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे है हिमालयन रीजन। इस साइड में क्या है,
हिमालय। अब ये क्या है, फिजिकली बात कर रहे हैं इंडिया की, फिजिकल रूप से यहाँ पे हिमालय रीजन है। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, डिजर्ट एरिया है, थार का डिजर्ट है वो इस एरिया के अंदर है। यहाँ पे प्लेन है, जो गंगा है, यमुना है, इनका जो प्लेन है या फिर नदियों का प्लेन है, रिवर का प्लेन है, वो इस एरिया के अंदर है। ये वाला पार्ट है, आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये प्लेटो है, पठार वाला पार्ट है। तो दीज आर द फिजिकली, कह सकते हैं कि इंडिया की जो कंडीशन है या फिर सिचुएशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इंडियाज़ के नेबर कौन कौन से हैं। आपको देख पाएंगे कि इंडिया के, पहले मैं आपको देख सकता हूँ कि इंडिया के नेबर किस संदर्भ में। आपको जो नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री वो कौन कौन से है, तो आपको पता होगा या फिर नहीं होता, मैं बता दूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दीज आर द नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भूटान के बाद बांग्लादेश, पता है इंडिया के 9 नेबर कंट्री है। और म्यांमार कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कितना बोला, 9 कंट्री है जो नेबर कंट्री है। कौन कौन से, वो 2 कंट्री है, वो मैं बता देता हूँ। वो कोस्टल कंट्री है, कह सकते हैं कि ओशन कंट्री है, ठीक है। ये हो गया श्रीलंका, और 9th पे है ये मालदीव, ठीक है। दीज आर द नेबर कंट्री ऑफ इंडियाज। एक बार आपको इनकी कहाँ पे इस अवस्थिति है मैं दिखा देता हूँ। जो पाकिस्तान जस्ट अटेस्टेड विथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल्सो द some boundaries of India attached with the Afghanistan in northern part of India. China is also northern part in India. Nepal in also northern part. Bhutan also in northern part. Bangladesh is the southeastern part. Myanmar is the eastern part of India. Or these the Sri Lanka and Maldives. You can see here Maldives. Okay. तो कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज आर द नेबर कंट्री ऑफ इंडियाज। नेक्स्ट मूव टू इंडिया जो पॉलिटिकल है, कह सकते हैं कि इंडिया की पॉलिटिकल के अंदर हम कह सकते हैं पॉलिटिकल के अंदर क्या है कि इंडिया को पॉलिटिकल रूप से कितने पार्ट के अंदर बांटा गया है, ठीक है। पॉलिटिकल रूप से कितने पार्ट के अंदर बांटा गया, तो ये इंडिया की जो पॉलिटिकल है वो 28 स्टेट के अंदर इंडिया को विभाजित किया है या फिर डिवाइड किया है, और 8 यूनियन टेरिटरी यूटी के अंदर, 28 स्टेट 8 यूटी के अंदर इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके थ्रू, ऊपर लद्दाख, श्रीनगर या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दीज आर द सम स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडियाज। ओके, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये वाले। ओके, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, मैंने आपको पॉलिटिकल बता दिया है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल डिवाइड, इंडिया को 28, ये देखो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी के अंदर इंडिया को डिवाइड किया हुआ है। जो इंडिया की जो कैपिटल सिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर देखेंगे तो कम कैपिटल सिटी है इंडिया की, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज दिल्ली, जो कि यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सिटी, इकोनॉमिक कैपिटल कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल तो है दिल्ली, इकोनॉमिक कैपिटल कहाँ है, वो है मुंबई। ओके, ये देखो अरेबियन सी आप देख सकते हो, जस्ट ए सेकेंड, पेन कलर
अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन फिजिकल, ये जो मैप का नाम है, और यहाँ पे ग्रेटर हिमालय और प्लेटो, दक्कन प्लेटो, ये जो डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया, विंध्य रेंज है। आपको मैं नेक्स्ट जो पार्ट्स है ज्योग्राफी के, उसके अंदर मैं आपको ये पूरा का पूरा फिजिकली एक्सप्लेन भी करूँगा। कोस्टल एरिया है यहाँ पे, ये भी कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सब आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाएगा इंडिया की जो फिजिकल के अंदर सारे के सारे। अब चलते हैं फिजिकल डिवीजन, ये हो गया ठीक है, फिजिकल डिवीजन के ये आ जाओ अब फिजिकल पे। तो पता है फिजिकल डिवीजन के अंदर इंडिया को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हिमालयन पार्ट, हिमालयन पार्ट, सेकेंड नंबर पे प्लेन्स ऑफ गंगा, प्लेन कह सकते, प्लेन्स मैदान ठीक है। थर्ड नंबर पे डिजर्ट, फोर्थ नंबर पे काफ़ी सारे हैं, जैसे कि डिजर्ट के बाद में प्लेटो है ठीक है। फिफ्थ नंबर पे कोस्टल, कोस्टल एरिया है। सिक्स नंबर पे आप कह सकते हैं आइलैंड एरिया है, आइलैंड एरिया। दीज आर द सम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मैं आपको थोड़ा सा ये जो हिमालय वाला पार्ट है ठीक है, ये प्लेन वाला पार्ट है, ये डेजर्ट है, ये प्लेटो वाला पार्ट है, और ये विंध्य और तापी ये भी प्लेटो वाला पार्ट के अंदर है। वेस्टर्न घाट, ये जो कोस्टल एरिया है इसके अंदर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ये सब आते हैं ठीक है। जो कोस्टल प्लेन है, जो कोस्टल एरिया के अंदर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट प्लस कोस्टल प्लेन भी आते हैं। मैं आपको एक बार मैप के साथ एक्सप्लेन करूंगा ठीक है। आइलैंड एरिया, आइलैंड एरिया इस साइड में है, ये वाला आइलैंड एरिया है, ये वाला आइलैंड एरिया, ये लक्षद्वीप वाला एरिया है ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ठीक है। अब हिमालयन आप देखेंगे, एक इंडिया का रफ मैप बना देते हैं कि ये माना कि ये इंडिया है ठीक है। अब यार ये इंडिया मुझे अच्छे से नहीं बन रहा, जस्ट ए सेकंड, थोड़ा सा अच्छे से बनाए इंडिया, थोड़ा सा अच्छे से बन जाए भाई ठीक है। अपने एक्सप्लेन के लिए ये काफ़ी बेटर बन गया है ठीक है, इंडिया काफ़ी बेटर है। अब देखो ये इंडिया मान लो, एज्यूम कर लो कि दैट इज इट इज़ द इंडिया ठीक है। इसके अंदर आप हिमालयन, ये वाला हिमालयन पार्ट है, पेन कलर थोड़ा चेंज होता है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला हिमालयन पार्ट है, दीज आर द हिमालयन पार्ट। ये जो है मैदान है, प्लेन्स ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, ये वाला डेजर्ट का पार्ट है। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो रेंज है विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला है दक्कन प्लेट, या फिर कह सकते हैं जो पठार वाला पार्ट है, प्लेटो वाला, प्लेटो वाला पार्ट है ये वाला है। ये हिमालयन रेंज है, ये प्लेन्स, डिजर्ट, डिजर्ट, ये वाले ये विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज ओके। अब आपको एक बार आपको समझ में आया होगा कि सर ये तो प्लेटो हो गया। पता है इस एरिया के अंदर एक और चीज़ है, वो क्या है, देखो ये वाली जो है ये पार्ट है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ओके। ये वाला पार्ट है ईस्टर्न घाट। ये जो मैंने जिगजैग रेखा जो खींची है जिगजैग टाइप में, उसको बोलेंगे हम ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। और जो ईस्टर्न घाट और कोस्टल एरिया के बीच में ये वाला गैप है ठीक है, ये वाला, तो ये वाला हो गया कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन। जो कोस्टल के अंदर जो प्लेन स्थित है, प्लेन्स मैदान वगैरह, उसको हम बोलेंगे कोस्टल प्लेन। अब हिमालय के अंदर आप पार्ट देखेंगे कि हिमालय जो सबसे जो ग्रेटर हिमालय है वो सबसे नॉर्थ साइड में सबसे ग्रेटर हिमालय आप देखेंगे तो इसको सबसे नॉर्थ के अंदर है, और बीच में
हिमाद्री, इसको हिमाद्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, हिमाद्री। थर्ड नंबर पे है शिवालिक, हिमाचल, हिमालय, और इसको बोलेंगे शिवालिक, ठीक है। तो दिस द डिवीजन ऑफ द इंडियाज फिजिकल डिवीजन। अगर आपको कोई थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलुवियल डिपॉजिट एंड ट्रिब्यूटरी, ये दो टर्म दिए हुए। एलुवियल डिपॉजिट वो होते हैं जब कोई जो नदी होती है, नदी अगर कोई कह सकते हैं, या फिर वो डिपॉजिट यहाँ पे डंप करती है, तो उसको हम बोलेंगे एलुवियल डिपॉजिट। जैसे कि नदी है, रिवर सिस्टम के अंदर कुछ जो रेत के कण वगैरह आते हैं और एक जगह डंप हो जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एलुवियल डिपॉजिट। अब ट्रिब्यूटरी क्या है? जब नदी की कोई सहायक नदी है, स्ट्रीट है, या फिर कह सकते हैं करंट है, उसको हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी, जो नदी की सहायता करती हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव टू, कोई डाउट हो तो पूछ सकते। अब बोलते हैं जब कोस्टल एरिया के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये सुनामी, ये देखो कभी कभार आपको डिजास्टर वगैरह भी आती है। ये जो हमको डेंजर ऑफ वाटर का डेंजर, जो इन सब एरिया के अंदर कहीं न कहीं डेंजर, जैसे कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे मैं मोटी मोटी डिजास्टर लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे अर्थक्वेक यहाँ पे आने की संभावना रहती है। और यहाँ पे एक और होती है, वो स्लाइडिंग होती है, हिम स्लाइडिंग कह सकते हैं, ठीक है, भूस्खलन, ठीक है। और यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया के अंदर, यहाँ पे लैक ऑफ रेन, जो रेन की कमी होती है, इसके कारण होता है ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। इन एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। जो प्लेन एरिया के अंदर, यहाँ पे फ्लड्स वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कोस्टल प्लेन्स वगैरह, इसके अंदर आपको सुनामी वगैरह की बहुत ज़्यादा आती है। सुनामीज़ क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो, जो समुंदर से ये जो अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इनसे क्या है, इनसे जो वाटर की जो बड़ी बड़ी तरंगे आती है, उनके कारण काफ़ी सारे डिजास्टर हो सकती है। डिजास्टर को ये जो लीड करती है, उनको बोलेंगे हम सुनामी। तो ये क्या है, किलर वेव कह सकते हैं। सुनामी का एक डायग्राम इस केस बनाया हुआ है, यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो सुनामी है, जो कोस्टल एरिया के आसपास जो घर बने हुए या फिर आवास है, उनको एकोमोडेशन, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है सुनामी। नेक्स्ट मूव टू, ओके, 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। आपने देखा होगा कि जो इंडिया है, इस प्रकार से यहाँ पे आपने कुछ देखा होगा कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार ये ग्रुप है आइलैंड के, ठीक है। और यहाँ पे है, आपको देखेंगे तो ये है लक्षद्वीप, इस साइड में लक्षद्वीप, सॉरी यार, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे लक्षद्वीप। ओके, द कंप्लीट हो गया लेसन अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपका जो होमवर्क है वो ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अगर कोई इनसे कोई डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है, जैसे कि मैंने ये सारे के सारे कंसेप्ट समझाए, ठीक है, इनमें से कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप बेझिझक होके कमेंट में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे, मैं जब भी टाइम मिला मैं आपको आंसर करूँगा। और पहली बात है कि आप टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहाँ काफ़ी सारे नोट्स वगैरह भी है, तो आप उनको एक्सप्लोर कीजिए। और कोई डाउट है यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर, आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर शेड्यूल प्रॉब्लम है, कुछ भी, कोई भी रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू,
नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो के अंदर। ओके।